यस सर, आ रही है। ओके। ओके, तो हम पढ़ रहे थे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। एक बार फिर से पढ़ दीजिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट। To convert the temperature from one scale to another, the following relation is used. Temperature on one scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point is equal to temperature on other scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point. आगे पढ़िए। As shown in the above figure, if the temperature of the body is measured as Tc, Tf, Tr, and Tk on Celsius, Fahrenheit, Reaumur, and Kelvin scales respectively, then Tc minus 0 upon 100 minus 0 is equal to Tf minus 32 upon 2 or 112 minus 32 is equal to Tr minus 0 upon 80 minus 0 is equal to Tk minus 273.15 upon 373.15 minus 273.15 is or Tc minus 0 upon 100 is equal to Tf minus 32 upon 180 is equal to Tr minus 0 upon 80 is equal to Tk minus 273.15 upon 100. हाँ, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक न्यूमेरिकल आता है, आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो इन दोनों को उठा लीजिएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट से र्यूमर में जाना है तो इसको उठा लीजिएगा। र्यूमर को केल्विन में ले जाना है या किसी को किसी में ले जाना है तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, व्हाट आर द एडवांटेजेस। Of using mercury as a thermometric substance over other liquids. Advantage of using mercury as a thermometric substance as compared to other liquids. Mercury has a uniform coefficient of expansion over a wide range of temperature. हाँ, तो ये हम फायदे पढ़ रहे हैं कि अलग अलग मतलब मरकरी को यूज करने के क्या फायदे। तो पहला है कि मरकरी का जो एक्सपेंशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब मरकरी बदल बदल के एक्सपेंशन नहीं देती है, एक फिक्स एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पढ़िए। Mercury is opaque and bright, so its level can be seen easily in a glass tube. It does not stick to the walls of glass tube. It is a good conductor of heat and so attains the temperature of the hot body quickly. It has low specific heat. It absorbs very small amount of heat from the body whose temperature is to be measured. The range of mercury thermometer is quite large because of its lower freezing point minus 39 degrees Celsius and high boiling point 357 degrees Celsius. Mercury is non-volatile. तो ये सारे रीजन है जिसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरकरी की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। मतलब मरकरी जो होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ही कम ही रिक्वायरमेंट हीट की मांगती है। बहुत कम हीट, मतलब मरकरी खुद को गर्म होने में बहुत ही कम हीट की रिक्वायरमेंट मांगती है, इसलिए स्पेसिफिक हीट मरकरी की बहुत कम है, जबकि पानी की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा है ना। इसलिए ये जो है अपने पास मरकरी थर्मोमीटर का अपन इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये हो गया। अब पढ़ते हैं अपन, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ अ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल किसे बोलते हैं? केल्विन स्केल को ही एब्सोल्यूट स्केल के नाम से जाना जाता है। पढ़िए। According to Charles' law, if V1 and V0 are the volumes of टी T डिग्री सेंटीग्रेड। Celsius and 0 degree Celsius respectively of a given mass of a gas at constant pressure P, then Vt is equal to V0 bracket में 1 plus T upon 273.15. हाँ, नोट कर लीजिए, Clearly ये the ये चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। ये चार्ल्स लॉ, ये yes अप्लाई yes होता है, चार्ल्स ने बताया था ये लॉ कि जब कोई गैस है ना, गिवन मास ऑफ गैस है, अगर yes आप उसको कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म करोगे, अगर किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म करोगे तो सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में वी टी इज इक्वल टू वी जीरो वन प्लस टी अपॉन 273.15 होगा। ठीक है ना, अगर आप गर्म yes. करोगे और नीचे उसका ठंडा करोगे, अगर ठंडा करोगे तो क्या होगा देखो। Clearly the volume of the gas below 0 degree Celsius will be less than V naught. For example, volume of the gas at minus 2 degree Celsius is V minus T is equal to V zero 1 minus T upon 273.15.
The decrease of temperature results in the decrease in the volume of gas. This has been shown graphically in the figure 11.2 by plotting the volume of a given mass of a gas against temperature at constant pressure. If we extrapolate the straight line graph, it meets the temperature axis at minus 273.15 degrees Celsius. Thus, a gas occupies zero or no volumes at minus 273.15 degrees Celsius. Clearly, a temperature below minus 273.15 degrees Celsius is impossible because then the volume of gas would be negative, which is meaningless. Moreover, all molecular motion stops at minus 273.15 degrees Celsius. Hence, the lowest temperature of minus 273.15 degrees Celsius at which gas is supposed to have zero volume and zero pressure, and at which entire molecular motion stops, is called the absolute zero of temperature. यस, तो इसको Lord ये Kelvin तो suggested new scale of temperature is देखिए। starting with minus 273.15 as its zero. This scale of temperature is known as the Kelvin scale or absolute scale. The size of degree on Kelvin scale is same as that on Celsius scale. Therefore, T Kelvin is equal to T degree Celsius plus 273.15. हाँ, तो ये एब्सोल्यूट स्केल का फॉर्मूला है टी इन कैल्विन। कैल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है क्योंकि लॉर्ड कैल्विन ने इसकी खोज की थी। टी कैल्विन इक्वल टू टू टी टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव साइड में जाने पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो, तो अगर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0। मतलब इतने टेम्परेचर पर, ये देखिए -273.15 पर गैस का वॉल्यूम आखिरकार कम होते 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 कितने पे गिर गया? 0 पे। इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना होगा? 0। तो ये जो टेम्परेचर कहलाता है जहां से गैस का जन्म होता है एक तरीके से, क्योंकि वहां पे 0 था, उसके बाद ही तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलिए अगला पढ़िए। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का आता है एग्जाम में। व्हाट इज मेंट बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर? पढ़िए बेटा। The triple point of is the scale at which the एक three मिनट, phases पूरा of क्वेश्चन तो पढ़ दो भाई। water. व्हाट इज मेंट Huh? बाय, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ दीजिए। व्हाट इज मेंट बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ टेकिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ Water. वाटर एज द फिक्स्ड पॉइंट फॉर अ टेम्परेचर स्केल? क्या कारण है कि आप ट्रिपल पॉइंट को भी एक फिक्स पॉइंट ट्रीट करके पढ़ते हो? अब पढ़िए। Triple point of water. The triple point of water is the state at which the three phases of water, namely ice, liquid water, and water vapor, are equally stable and coexist in equilibrium. हाँ, और इक्वल ये देखिए, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर इज द स्टेट, ऐसी स्टेट जहां पर तीनों फेज वाटर की, नेमली आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, इक्वली स्टेबल एंड कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब कि एक बैलेंस स्थापित हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम, है ना। इट इज यूनिक बिकॉज, हाँ, इट इज यूनिट बिकॉज इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ 273.16। लिख लीजिए भाई कॉपी में। ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू होता है 273.16 केल्विन, मतलब क्या? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फेज को एग्जिस्ट करेंगी और तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। और साथ ही साथ प्रेशर का भी ध्यान रखिएगा। प्रेशर कितना होता है? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। मरकरी कॉलम का 0.46 सेंटीमीटर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उस समय आपका ट्रिपल पॉइंट आपको मिलेगा फॉर अ वाटर। Yes, sir. पढ़िए। पी ट्रिपल इक्वल्स टू, प्रेशर ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू, कहाँ पर सर? ये लिखा हुआ है पी ट्रिपल, प्रेशर ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू 0.46 सेंटीमीटर ऑफ एच जी एंड टी टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू 2.273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। पढ़िए द मेल्टिंग पॉइंट से पढ़िए आप। Melting point of ice and boiling point of water both changes with pressure. Also, the presence of impurities changes the values, but the triple point of water has a unique temperature and is independent of external factors. So, the triple point of water is preferred as the fixed point for a temperature scale. हाँ भाई, ट्रिपल पॉइंट को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इन द एब्सोल्यूट,
Uh, in the absolute Kelvin scale, the triple point of order is assigned the value of 273.16. Kelvin, the हम्म absolute zero is taken as the other fixed point on the scale. बिल्कुल सही है। तो इसमें जो एक पॉइंट बनेगा केल्विन स्केल में वो बनेगा 273.16 और एक बनेगा जीरो। तो अभी जो फॉर्मूला अपन पढ़ करके आए हैं कौन सा फॉर्मूला, वो टी माइनस टी के अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये बन जाएगा अपर फिक्स पॉइंट और जीरो केल्विन बन जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट। चलिए पढ़िए अगला है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अगला टाइप का थर्मोमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। Constant volume gas thermometer. It is used to measure the pressure of a definite mass of air at different temperatures. The volume of air remaining constant. Its working is based on Gay-Lussac's pressure law, according to which the pressure of a given mass of a gas increases linearly with the rise of temperature if the volume is kept constant, as illustrated graphically in figure 11.3. By pressure law, P by T is equal to P naught by T naught is equal to T is equal to T naught into P by P naught. In terms of triple point of water, T is equal to TTR into P by TR. TTR is equal to 273.16. T is equal to 273.16 into P by PTR. हाँ तो देखिए प्रेशर लॉ जो होता है गेलोसॉफ्स का यही होता है, P1 अपॉन टी वन इक्वल टू P2 अपॉन टी टू। उसका यूज करके एक टी अननोन जो है मतलब आपको टेम्परेचर जो है अननोन टेम्परेचर आप इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर पता कर सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना अननोन टेम्परेचर पता करने का तरीका। इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको, गैस कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये गेलुसाक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गैस थर्मोमीटर पढ़िए। As the expansion of gas is large, so the gas thermometer are very sensitive. The gases expand uniformly and regularly over a wide range of temperature. The increase of pressure of a gas with temperature is independent of the nature of the gas. Gas thermometers can be used for a wide range of temperature. हाँ भाई, तो क्या एडवांटेज है गैस थर्मोमीटर के? नंबर वन, एज इट द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज लार्ज, सो द गैस थर्मोमीटर आर वेरी सेंसिटिव। एक्सपेंशन जो होता है गैस का बहुत लार्ज हुआ करता है, इसलिए छोटे छोटे टेम्परेचर के लिए भी ये बहुत सेंसिटिव हुआ करते हैं। गैस थर्मोमीटर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दूसरा, द गैस एक्सपैंड यूनिफॉर्मली ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब गैस जो होती है ये एक प्रकार से एक्सपेंड करती है बहुत लंबे टेम्परेचर के लिए। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है गैस का एक्सपेंशन, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। और गैस थर्मोमीटर कैन बी यूज फॉर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए अगला है व्हाट इज मेंट। अगला क्वेश्चन श्योर फॉर एग्जाम 100%। चलो पढ़ो अपना तो। हाँ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ बॉडी। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में जाइएगा, कॉपी मिले आपको लिख दीजिएगा बिना पेपर मिले, ये आना ही आना है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। तो व्हाट इज मेंट बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ बॉडी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़िए। Thermal expansion. Almost all solids, liquid, and gases expand on heating. The increase in the size of a body when it is heated is called thermal expansion. Different types of thermal expansion. Linear expansion. It is increase in the length of a metal rod on heating. Superficial expansion. It is the increase in the surface area of a metal sheet on heating. Cubical expansion. It is the increase in the volume of a block on heating. तो तीन तरीके के एक्सपेंशन होते हैं, लेंथ में, एरिया में होने वाले एक्सपेंशन को सुपरफिशियल बोलते हैं और वॉल्यूम में होने वाले एक्सपेंशन को अपन क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो तीन तरीके के एक्सपेंशन है। आइए पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इसका ये आता है। पढ़िए, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ Linear expansion. Write an expression for it. Give its unit. The coefficient of linear expansion. Suppose a solid rod of length L is heated through a temperature delta T and its final increased length is L. एल It डैश। is found it is found from experiment that increase in length is directly proportional to temperature. Increase in length is directly proportional to original length. नो नो, देखिए, अच्छा हाँ ये आपने पढ़ दिया, इसके बाद पढ़िए दैट इज एल माइनस एल, एल डैश माइनस एल मतलब चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, मतलब एल डैश माइनस एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दीजिए तो एल डैश माइनस एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, या एल डैश माइनस एल इज इक्वल्स टू
यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है बेटा अल्फा है, अल्फा एल डेल्टा टी, लिख लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, अल्फा एल डेल्टा टी। अब एल डैश को रोक लो और एल को इधर ले जाओ, एल डैश को इधर रोक लो, एल को इधर ले जाओ। द प्रॉपर्टी दिस proportionality constant alpha is called coefficient of linear expansion. Its value depends on the nature of the solid. So clearly L dash equals to L bracket में 1 plus alpha delta t. लिख लिया? Yes, sir. हाँ, and alpha equal to L dash minus L upon L delta t. Okay, L dash minus L को क्या कह देंगे अपन? Delta L upon L delta t. So what is alpha? It is change in length per unit original length per unit rise in temperature. पढ़िए, hence Hence, the coefficient of linear expansion of material of a solid rod is defined as the increase in length per unit original length per degree rise in temperature. the unit of alpha The unit of alpha is a degree Celsius negative. पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, है ना? Yes, sir. चलिए, क्योंकि देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, केवल नीचे टेम्परेचर बचेगा, इसलिए ये आ गई। चलिए अगला पढ़िए, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गिव इट्स यूनिट। Coefficient of superficial expansion. Suppose a metal sheet of initial surface area S is heated through temperature delta T and its final surface area becomes एस क्या डैश लिखा सर एस डैश एस डैश S dash. Then S dash is equal to S dash minus S directly proportional to delta T and S dash minus S directly proportional to S minus S minus S नो, directly एस proportional एस डैश to माइनस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को कंबाइन कर दिया तो एस डेल्टा टी बन गया, इसको भी कंबाइन कर दिया, इसको भी कर दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे आएगा बीटा। अब पढ़ो, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बीटा is called coefficient of superficial expansion and its value depends on the nature of the material clearly S dash is equal to S 1 plus beta delta t and beta is equal to S dash minus S upon S delta t is equal to delta S upon S delta t and or beta is equal to increase in surface area by original surface area into rise in temperature. Hence, the coefficient of superficial expansion of a metal sheet is defined as the increase in its surface area per unit original surface area per degree rise in its temperature. The unit of beta is per degree Celsius or per degree Kelvin or per Kelvin. नेक्स्ट। Define coefficient of cubical expansion. Write an expression for it. Give its unit. So coefficient of cubical expansion. Suppose a solid block of initial volume V is heated through a temperature delta T and its final volume is V dash. Then V dash minus V is directly proportional to delta T. V dash minus V is directly proportional to V or V dash minus V is equal to गामा। gamma V delta T. And the proportionality constant gamma is called the coefficient of cubical expansion which depends on the nature of the material of the solid. एग्जैक्टली, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो मटेरियल ऑफ द सॉलिड पे ही यूज करेंगे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अल्फा बीटा गामा। और एक 100 इसमें इसको पढ़ दीजिए थोड़ा सा क्लियरली, वी डैश इक्वल्स टू, Sorry. Clearly V dash is equal to V 1 plus gamma into delta T and gamma is equal to V dash minus V upon V delta T is equal to delta V upon V delta T where gamma is equal to increase in volume upon original volume into rise in temperature. Hence, the coefficient of cubical expansion of a substance is defined as the increase in volume per unit original volume per degree rise in its temperature. The unit of gamma is per degree Celsius or per Kelvin. हाँ मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की डायमेंशंस और यूनिट दोनों की सेम है। ठीक है, नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन 17। How does the coefficient of cubical expansion of a substance vary with temperature? Draw gamma versus T curve for copper. हाँ, कॉपर के लिए, कॉपर मेटल के लिए गामा वर्सेस टी ड्रॉ करो, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट
सॉरी कौन सा क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। पढ़िए, फॉर अ गिवन सब्सटेंस Various of gamma with temperature. For a given substance, gamma varies with temperature. Figure 11.4 shows the variation of the coefficient of cubical expansion of copper with temperature. The value of gamma first increases with temperature and then becomes constant at a high temperature above 500 Kelvin. हाँ, 500 केल्विन के बाद जो गामा होता है वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब इसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा कर्व। तो शुरुआत में जो गामा की वैल्यू होती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, इसके बाद इसमें सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के साथ गामा की वैल्यू जो होती है बढ़ती जाती है। इसके बाद 500 केल्विन के बाद वो सैचुरेट हो जाएगी, मतलब इसमें स्टेडी नेचर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ गामा फर्स्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। इसके बाद गामा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और नहीं बढ़ेगा गामा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, शो दैट So that the coefficient of cubical expansion of an ideal gas at constant pressure is equal to the reciprocal of its absolute temperature. The coefficient of cubical expansion of an ideal gas at constant pressure for an ideal gas PV is equal to pi RT एनआरटी, बेटा and एनआरटी nRT. आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ पढ़ो। P delta V is equal to nR delta T at constant pressure. P delta V is equal to nR delta T. सेकंड इक्वेशन हो गया ये, हम्म, where चूंकि n and r are constants, second dividing second by first, we get delta v by v is equal to delta t by t, or delta v by delta t is equal to 1 by t, or gamma is equal to 1 by t. हाँ, क्योंकि Hence for an ideal डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती थी, गामा होती थी। डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी क्या होती थी, गामा। तो गामा yes इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/t। तो न्यूमेरिकली gamma, जो गामा होता है 1 अपॉन टाइम, मतलब टेम्परेचर, सॉरी जो आपने टेम्परेचर अप्लाई किया है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाई किया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पढ़ो, हेंस फॉर एन आइडियल गैस hence for an ideal gas the coefficient of volume expansion decreases with the increase in temperature. यस, आइडियल गैस के लिए अगर आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका गैसेस का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन उतना घटेगा। यस, ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है SFE, मतलब श्योर फॉर एग्जाम, आएगा ही आएगा, बिना इसके पेपर ही नहीं बनता। पढ़िए, व्हाट What इज is meant by coefficient of a linear expansion, superficial expansion, and cubical expansion of a solid? Derive the relationship between them, or so that alpha is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3, where the symbols have their usual meaning. For definition of alpha, beta, and gamma, refer answer to question number 14, 15, and 16 above. Relation between alpha, beta, and gamma. Consider a cube of side L. Its original value is V is equal to L cube. Suppose the cube is heated as so that its temperature increased by delta T. Its each side will become L is क्या लिखेंगे? एल डैश इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल बेटा। तो एल डैश इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, अब डेल्टा एल क्या पढ़ा अपन ने, अल्फा एल डेल्टा टी। तो एल कॉमन ले लो, तो एल डैश इक्वल टू एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी पढ़ा है इसके पहले ना, नई वाली लेंथ जो Yes, आएगी क्या हो जाएगी, एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अपन को नया वाला वॉल्यूम निकालना है, तो नया वाला वॉल्यूम क्या होगा, नई वाली लेंथ का क्यूब। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर दो, तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² है ना, प्लस कितना बी क्यूब। बोलो यस। yes, sir. देखिए क्या क्या बन गया अपने पास, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ दो एक बार। नाउ द न्यू वॉल्यूम, Now the new volume of the cube will be V dash is equal to L dash cube is equal to L cube 1 plus alpha delta t ka whole cube is equal to V 1 plus 3 alpha delta t plus 3 alpha square delta t ka square plus alpha cube delta t cube. हाँ देखो एल क्यूब को ही भी बोल दिया। अब देखो बेटा अल्फा बहुत छोटा होता है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अल्फा के बहुत ही छोटे होने के कारण, क्योंकि छोटी चीज का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी। जैसे 1/100 का स्क्वायर करोगे तो 1/10,000 हो जाएगा, तो और छोटा हो गया। तो ये टर्म Yes. और ये टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। इन टर्म को आप क्या कर दोगे, गायब। तो केवल दो टर्म बचेंगे अपने पास,
है ना, कौन कौन से हाँ, केवल हमारे पास जो टर्म बचेंगे पढ़ो। एज अल्फा इज स्मॉल, As alpha is small, so the terms containing alpha square and alpha cube can be neglected. Then V dash is equal to V 1 plus 3 alpha delta t by the definition of the coefficient of cubical expansion. Gamma is equal to delta V upon V delta t is equal to V dash minus V upon V delta t is equal to V 1 plus 3 alpha delta t minus V upon V delta t is equal to 3 alpha. यस। तो देखिए गामा की वैल्यू यहाँ पे 3 अल्फा आ चुकी है। तो देख लीजिए आपके पास ये जो सॉलिड्स दिख रहे हैं, अगर आप केवल लेंथ की बात करोगे तो डेल्टा एल अपॉन एल कितना आता है यहाँ पे, अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा ए अपॉन ए कितना आएगा अल्फा के टर्म्स में 2 अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन वी जो आएगा वो 3 अल्फा डेल्टा टी अभी आया है ये वाला, ठीक है ना। तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। तो हम इस तरीके से सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो रिलेशन क्या बन गया, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 3, क्योंकि यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे अलग करोगे तो गामा बाई 3 हो जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो बीटा बाई 2, तो अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। क्लियर हुआ जी? हेलो, Yes sir. ओके, हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक मिनट सर. Thermal expansion of कहाँ गया? सॉलिड्स, Explain thermal expansion of on the basis of the potential energy curve, or thermal expansion is a consequence of atomic vibration and symmetry of potential energy function. असिमेट्री, असिमेट्री मतलब जो सिमेट्रिसिटी थी वो बिगड़ गई पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की। तो इसके पहले जो आपने वो चैप्टर पढ़ा है थर्मल सॉरी मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसमें आपने ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो कर्व होता है इस तरीके से हुआ करता है, इस तरीके से हुआ करता है ना, सॉलिड का। Yes sir. तो होगा क्या, जब आप गर्म करोगे किसी मटेरियल को तो ये जो डिस्टेंसेस दी गई हैं, ये डिस्टेंसेस जो होंगी शिफ्ट होकर के इधर की तरफ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, मतलब वाइब्रेशन होते हैं जिससे इनकी जो ओरिजिनल डिस्टेंसेस थी वो बदल जाएंगी। अब इसको इसमें पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। दूसरा पढ़िए, और थर्मल एक्सपेंशन। Thermal expansion is a consequence of atomic vibration and asymmetry of potential energy function. Explain. Answer is the molecular explanation of thermal expansion as shown in figure 11.6. The graph between the potential energy UR of two neighboring atoms in a crystalline solid and their interatomic separation R is an asymmetry parabola. At the temperature T naught is equal to 0 Kelvin, the atoms remain at the equilibrium separation R naught and their oscillation energy E naught is minimum. As the temperature increases, the energy of atom increases and they start vibrating about their equilibrium position with the interatomic separation oscillating between its minimum and maximum values R minimum and R maximum. The average हाँ, interatomic separation becomes बिकम्स आर gamma is इक्वल्स टू बिकम्स आर इक्वल्स टू आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम अपॉन 2। मतलब पहले देखो हाल क्या थे, पहले यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर जीरो पे बैलेंस पे था। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये जो एटम्स हैं ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगे, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, जिससे इनकी जो मीन पोजीशन है वो बदल जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम अपॉन 2। क्लियरली? clearly as the temperature increases, the amplitude of vibration of atoms increases due to the asymmetry of the PE curve. हम्म, The equilibrium position shifts to the right on the curve as shown by the dashed inclined line. That is the average interatomic interatomic separation is separation increases. It is thus the consequence of increase the average interatomic separation with the temperature that a solid expand when heated। तो होता क्या है यार, जो सेपरेशन जो इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी वो खसक करके इधर से जो पहले यहाँ पे आ रहा था R जीरो, ये सारी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है ये इस ग्राफ में चली जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट्स में आ जाएंगे। मतलब ये जो ग्राफ यहाँ से आ रहा था
वो अब इन पॉइंट को ट्रेस करेगा, इन पॉइंट्स को ट्रेस करेगा जो नया ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये सारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस इनकी खिसक गई। सो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय थर्मल स्ट्रेस, डेड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए रॉड फिक्स्ड एट बोथ एंड रिजिडली। कि थर्मल स्ट्रेस क्या होती है और थर्मल स्ट्रेस का डेरिवेशन बताइए। चलिए लास्ट डेरिवेशन है, पढ़ दीजिए जल्दी से इसको। थर्मल स्ट्रेस, Suppose the thermal expansion of a rod is prevented by fixing both its end rigidly, then the rod acquires a compressive strain. The external forces exerted by the rigid supports at the ends. The corresponding stress set up in the rod is called thermal stress. Thermal stress is the force set up per unit cross-sectional area of a body when its thermal expansion or contraction is resisted. Consider a rod of length L and area of cross-section A with its both ends fixed between rigid and supports. The rod is heated to increase its temperature by delta T. Fractional change in the length of rod delta L upon L is डेल्टा equal एल to अपॉन एल alpha इक्वल टू delta अल्फा T. डेल्टा टी। हाँ ये अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब यंग मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, यंग मॉडुलस हुआ करता है Yep. फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ऊपर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। तो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। तो भैया डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू रख दो, क्या होगी डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू, डेल्टा एल बाई एल हमारे पास आया है अल्फा डेल्टा टी। तो गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल यहाँ पे आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो इसको सही कर लेना, इसमें अकेले इन लोगों ने गामा डेल्टा टी कर दिया है, वहां पे आएगा गामा अल्फा डेल्टा टी। ओके, दोनों चीजें यहाँ पे आएंगी, अकेले गामा डेल्टा टी नहीं आएगा, यहाँ पे गामा अल्फा डेल्टा टी आएगा। चलिए, सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा एल अपॉन एल की जगह वैल्यू पुट कर दो अल्फा डेल्टा टी। तो आंसर क्या आ जाएगा, गामा अल्फा डेल्टा टी। ओ सॉरी, दिस इज यंग्स है नॉट गामा। गामा हाँ खैर यंग्स मॉडुलस में इसको वाई बोल दिया करो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। तो थर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल अपॉन एल। सो ये बन जाएगा गामा डेल्टा एल अपॉन एल की जगह सही कर लेना कॉपी में, अल्फा डेल्टा टी आएगा। तो वाई अल्फा डेल्टा टी भी बोल सकते हो। हाँ पढ़ो, फॉर अ सफिशिएंट राइज ऑफ टेम्परेचर। The thermal stress may exceed the elastic limit or even the ultimate strength of the material. In such cases, a provision for thermal expansion must be made with while designing any structure. हाँ तो भैया जब स्ट्रक्चर कोई डिजाइन करते हो तो इस समय आप जो है थर्मल स्ट्रेस का भी ध्यान रखते हो कि कहीं गर्मी की वजह से ब्रिज वगैरह जो है उनकी स्ट्रेस कम, स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, तो उनको कंसीडर किया जाता है कि इतना हल्का मतलब एक्सपेंशन हो गया कि ब्रिज ही गिर जाए। ठीक है ना। तो चलिए जी, ये था आज की क्लास में हमारे लिए। ओके।